Second year. Today we will discuss about a new chapter. Rather, I will start a new chapter, environmental chemistry. First of all, definition of the environmental chemistry. It is the branch of chemistry which deals with chemical and other material or pollutants in environment, and it is called as environmental chemistry. Now, what are chemicals? These are different materials which may be moisture, which may be different compound in the gaseous form, etc., and are present in the atmosphere. And if these are hazardous for our health, then these are also called as pollutant. And now I start a new segments, environment and its component. Now, what is environment? It is composed of following four components. Number one, atmosphere. Number two, hydrosphere. Number three, lithosphere. Number four, biosphere. Now, what is atmosphere? A little bit introduction of atmosphere. Atmosphere is present above the earth in the form of different gases. Now, what is hydrosphere? It is the portion of the universe wherever water exists in the form of liquid, in the form of steam, in the form of moisture, etc. Now, lithosphere. It is the portion of the universe in which earth is present, mountain, etc. It is called as lithosphere. Now, the portion of universe which is composed of living things, living organism like plant and animal. This portion of the environment is called as biospheres. Now I will discuss one by one. So first of all, about atmosphere. The definition of atmosphere. The layer of gases surrounding the earth is called as atmosphere. It is a layer which surrounds the earth like blanket. And now, what is the composition of the atmosphere? Atmosphere is composed of different portions. Like number one, nitrogen gases, which is present 78% in the atmosphere. Number two, oxygen gas, 21%. Number three, argon gas, 0.9%. Number four, carbon dioxide, 0.03%. This was the composition of atmosphere. All these gases constitute the atmosphere. Now we will discuss about radiation absorbed by the atmosphere. What are different radiations which are absorbed by the atmosphere? Sunlight, which consists of a variety of wavelength, and some of wavelength are very
Therefore, atmosphere absorb most of these dangerous rays like cosmic rays. Atmosphere also absorb harmful electromagnetic radiations like ultraviolet rays. This was about the radiation which are absorbed by the atmosphere. Now we will discuss about those rays which are not absorbed by the atmosphere. Radiation from the sunlight, which are coming from the sunlight, having wavelength which lies in between 1300 to 25 nanometer, reach to the surface almost unabsorbed. The range of these wavelength includes number 1 near ultraviolet region, number 2 visible, number 3 infrared. Now we will discuss about utility of gases of atmosphere. As you know that different gases are present in atmosphere and how these are utilized and how these are essential for maintaining the life on the earth. Like number 1, as for oxygen, it is required for breathing purpose, because without oxygen we cannot breathe and life is impossible. Number 2, carbon dioxide, it is required for photosynthesis and it is the raw material which is utilized for the production of food by the plant. Number 3, nitrogen. Nitrogen gas is present 78% in the atmosphere, and there are certain bacteria which are called as nitrogen fixing bacteria, and these are present on the root of the plant naturally, and they extract nitrogen from atmosphere and fix it in the form of compound in the root of the plant so that the plant may grow, and these produce nutrient for the plant for the growth. Number 4, atmosphere. Atmosphere itself is very important for maintaining the heat balance of the earth, because there are different gases in atmosphere like carbon dioxide which absorb heat which is radiated by the earth, and it is captured by carbon dioxide which maintain the temperature on the earth so that life become possible. It was all about utility of different gases in atmosphere. Now we will discuss component of atmosphere, which is one of the constituent of the environment. Atmosphere can be divided into following. Number 1, troposphere. Number 2, stratosphere. Number 3, mesosphere. Number 4, thermosphere. And number 5, exosphere. A little bit introduction of troposphere. It is the sphere where we exist. And what is the stratosphere?
It is a sphere where ozone is present. It is also called as ozonosphere. And mesosphere, it is above the stratosphere, and thermosphere is more above the mesospheres. And then there is exosphere, where there is no air, therefore it is not called as atmosphere, therefore it is out of atmosphere, it is called as exosphere, and it is present on very high altitude. Now I will discuss component of atmosphere one by one. Number one, troposphere. First of all, troposphere is present on the earth, and it starts from the surface of the earth. And what is the altitude of the troposphere? It extends from the surface of the earth up to 11 kilometer altitude. So this is the area which is occupied by the troposphere upon the earth. Now what is the temperature range? The temperature range of troposphere is, the temperature lies in the range of 15 degrees centigrade to minus 56 degrees centigrade. Now what are important chemicals which are present in tropospheres? The most chemicals that exist in this sphere are nitrogen gas, oxygen gas, carbon dioxide, and water vapors. These are the major components, whereas in trace amount other gases are also present. Number two, stratosphere. What is stratosphere? It is a sphere which extends from 11 kilometer to 50 kilometer. It is present on more altitude. Now temperature range. The temperature in this sphere ranges from minus 56 to minus 2 degrees centigrade. Now what are the important chemicals which are present in this atmosphere? These are ozone, nitrogen gas, oxygen. As ozone is present in this atmosphere, therefore this is also called as ozonospheres due to presence of ozone. Number three, mesospheres. It is the third portion of the atmosphere. First of all, I will talk about the altitude. स्टूडेंट्स altitude बुलंदी को कहते हैं. Mesosphere extends from 50 to 85 किलोमीटर, यानी ये 50 से 85 किलोमीटर की बुलंदी जो है वहाँ पे ये मौजूद होता है, mesosphere. Now temperature ranges. The temperature in this region ranges from -2 to -92 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इसका जो टेम्परेचर रेंज होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा माइनस में होगा. Now important chemicals. The most important chemical that exist in this sphere are NO plus ions and O2 plus ions.
and due to presence of ions it is also called as ionospheres, यानी आयन की वजह से इसे ionospheres भी बोलते हैं. It was all about third portion of the atmosphere. Now we will talk about fourth portion of atmosphere, which is called as thermospheres. First of all, altitude of thermospheres. स्टूडेंट्स ये चौथा हिस्सा है एटमॉस्फेयर का. It extends from 85 to 500 kilometers and it is the last portion of atmosphere. Now what is the temperature range of this sphere? Temperature in this sphere ranges from -92 to 1200 degrees centigrade, as there is very high temperature, from low to very very high temperature. Therefore it is also called as thermosphere, where therm mean temperature. Therefore it is also called as thermospheres. Now what are the important chemicals which are present in thermospheres? The important chemical that exists in these spheres are O2 plus ion, NO plus ion, O and O plus. And it was the last portion of the atmosphere which is called as thermospheres. Students, now we will discuss another article, that is एयर पॉल्यूटेंट्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स. हवा के अंदर जो पॉल्यूटेंट्स मौजूद हैं, पॉल्यूटेंट्स का मतलब ये है कि वो केमिकल्स जो कि हमारे लिए नुकसानदेह हैं और जो कि हवा को ख़राब करने का बायस बनते हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे और उनके जो बुरे असरात हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉल्यूटेंट्स. नाउ व्हाट इज़ पॉल्यूटेंट? एनी सब्सटेंस in the environment which make adverse effect on human health, quality of life, functioning of ecosystem is called as pollutant. इसका मतलब ये होगा कि पॉल्यूटेंट वो तमाम चीज़ें हैं जो कि एक हद से ज़्यादा मिकदार में फ़ज़ा में मौजूद हैं और अपने बुरे असरात फ़ज़ा में जो है ये दे रहे हैं. और पॉल्यूटेंट हम उस चीज़ को बोलेंगे, वो चीज़ जो कि हमारे माहौल में बुरे इफ़ेक्ट दे रही है इंसानी सेहत के ऊपर, इंसान की जो लाइफ है इसकी क्वालिटी को कम कर रही है, और जो हमारा इकोसिस्टम है जिसमें हम रहते हैं, इस सिस्टम को वो पॉल्यूटेंट्स जो हैं उसके फंक्शंस जो हैं उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं. इन तमाम चीज़ों को हम पॉल्यूटेंट्स बोलेंगे. नाउ व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन का मतलब होगा उर्दू में हवा की आलूदगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गिव द डेफिनेशन ऑफ एयर पोल्यूशन: द मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस with our surrounding, particularly atmosphere, which damage the environment, human health and quality of life is called as air pollutant. इसका मतलब ये होगा कि वो तमाम चीज़ें जो कि इंतहाई ख़तरनाक हैं और हमारे माहौल में वो शामिल हो चुके हैं और वो हमारे माहौल को नुकसान दे रहे हैं, हमारी सेहत जो है उनकी वजह से लोगों की सेहत ख़राब हो रही है, लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, मयार ज़िंदगी का, वो ख़राब हो रहा है. इन तमाम चीज़ों को जो कि हवा में शामिल हैं, जो कि ख़तरनाक हैं, इनको हम एयर पॉल्यूटेंट्स कहेंगे और इस प्रोसेस को हम एयर पोल्यूशन बोलेंगे. इनका शामिल होना फ़ज़ा में, दिस इज़ कॉल्ड एज एयर पोल्यूशन. नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स?
ये जो चीज़ें जो कि ख़तरनाक शामिल हो जाती हैं हवा में और हवा को आलूदा बनाती हैं, इनके ज़राए के सोर्सेस के, देर आर मैनी एयर पॉल्यूटेंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे ऐसे एयर पॉल्यूटेंट हैं जो कि हमारी फ़ज़ा में शामिल हो रहे हैं। सम ऑफ देम आर, नंबर 1, कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड इंतहाई डेंजरस सेहत के लिए, स्पेशली ह्यूमन बीइंग के लिए, तो ये भी पॉल्यूटेंट करार दी जाएगी। नंबर 2, सल्फर डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम कॉक्सेस भी कहते हैं कि ये कार्बन के ऑक्साइड में से ऑक्साइड है। अब नंबर 2 पे सल्फ़र डाइऑक्साइड आ गया, तो इसको हम सॉक्सेस भी कहते हैं, यानी ये सल्फ़र का ऑक्साइड है, सल्फ़र डाइऑक्साइड। ये भी पॉल्यूटेंट है, जब ये एयर में होता है तो ये भी मुख्तलिफ़ किस्म की पॉल्यूशन देता है। लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट देम वन बाई वन। नंबर 3, नाइट्रोजन ऑक्साइड, विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज नाइट्रिक ऑक्साइड। इसको नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, NO। इट वाज द थर्ड पॉल्यूटेंट। नंबर 4, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टूडेंट, नाइट्रिक ऑक्साइड को नॉक्सेस भी बोलेंगे बिकॉज नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, तो ये भी एक ज़रिया है फ़ज़ा को या हवा को आलूदा करने का या गंदा करने का। नंबर 4 पे जो आया है ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इन्हें वॉक्सेस कहते हैं, यानी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो तमाम कंपाउंड जो कि ख़ुद बहुत जो हैं एवोपरेट होते रहते हैं, लाइक पेट्रोल है, एसीटोन है, ईथर है, स्पिरिट है, अल्कोहल है, ये सारे फ़ज़ा में ख़ुद ही शामिल होते रहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से, ऑटोमेटिकली। नंबर 5, ओजोन। अब ओजोन एक तरफ जो है वो हमारे लिए प्रोटेक्टिव लेयर है फ़ज़ा में, जो कि आने वाली ख़तरनाक जो शुआएँ हैं उनको वो रोक रही है, क्योंकि वो सारी रेज़ जो आ रही हैं अल्ट्रावायलेट रेज़, वो ऑल आर कार्सिनोजन रेज़, वो कैंसर फैलाने वाली रेज़ हैं। और जहाँ से ओजोन होल है वहाँ से रप्चर हो गया है, ओजोन होल बन गया, वहाँ से ये रेज़ आ रही हैं, और जहाँ पे ज़मीन की यूनिवर्स में जहाँ पे भी ये पड़ रही हैं वहाँ पे ये रेज़ जो हैं कार्सिनोजेंस हैं, यानी कैंसर फैलाने का बायस बनती हैं, स्पेशली स्किन कैंसर्स। तो ये तो तमाम सोर्सेस से जो कि पॉल्यूटेंट की वजह बनते हैं, और पॉल्यूशन हवा में ये इनकी वजह से होती है। स्टूडेंट्स, अब हम इनको वन बाई वन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पहले कार्बन मोनोऑक्साइड। Now, first of all, we will talk about the natural source of carbon monoxide, कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आती कहाँ से है, बनती कैसे। कार्बन मोनोऑक्साइड मेनली रिजल्ट्स फ्रॉम द इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ कार्बोनेशियस कंपाउंड। इसका मतलब यह है कि कार्बन मोनोऑक्साइड उस वक़्त बनती है जिस वक़्त कम्बशन हो रही होती है। और कम्बशन किसे कहते हैं जी? किसी चीज़ का जलना एयर में, यानी इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ज़्यादा ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलना, दिस इज़ कॉल्ड एज कम्बशन। अब इनकम्प्लीट कम्बशन किसे कहेंगे? कि जो कम्बशन मुकम्मल तौर पे ना हो रही हो, यानी नामुकम्मल हो, पार्शली कम्बशन हो, नामुकम्मल। नामुकम्मल से मतलब ये होगा कि अगर हमारे पास कहीं पे कम्बशन हो रही है कार्बोनेशियस कंपाउंड की, यानी वो कंपाउंड जो कि कार्बन कंटेनिंग है, यानी उनमें कार्बन है, उनकी कम्बशन हो रही है, वो एयर में जल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो कम है, तो फिर हम कहेंगे जी कम्बशन जो है ये कंप्लीट नहीं हो रही है, बल्कि इनकम्प्लीट कम्बशन हो रही है। और इससे ये होगा कि कार्बन की मिकदार ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की मिकदार कम होगी, तो उससे फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये बनेगी। अब ये सारे प्रोसेस जो हो रहे हैं नेचुरल प्रोसेस, ये कौन से हैं जहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है? तो नंबर 1, वोल्केनिक इरप्शन। अब वोल्केनो किसे कहते हैं जी? वोल्केनिक इरप्शन क्या है? वोल्केनो कहते हैं आतिश फ़शां को, इरप्शन कहते हैं फटना, आतिश फ़शां का फटना। तो वोल्केनिक इरप्शन का मतलब होगा कि जहाँ पे आतिश फ़शां फटते हैं तो वहाँ से वेस्ट गैसेस निकलती हैं। पहाड़ में आतिश फ़शां, उसकी इरप्शन हुई, इरप्ट हुआ, वो फट गया और वहाँ से
ज़ाहिर है आपको पता है बहता हुआ गर्म लावा निकलता है और वो बाद में वो जम जाता है, फ्रीज़ हो जाता है, उसको हम वॉल्केनिक ग्लास बोलते हैं। तो ये लावा जिधर से निकल के बहता है वहाँ से ज़ाहिर है वेस्ट गैसेस भी जो हैं वो निकल के जा रही होती हैं, क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई होता है। तो उन गैसेस में से कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ वन ऑफ देम, वहाँ से ये निकल के जा रही है। तो पहला हमारे पास एक नेचुरल सोर्स आ गया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कहाँ से निकलती है, वोल्केनिक इरप्शन से, यानी आतिश फिजां फटते हैं जहाँ पे बाकी जो है वो प्रोसेस होता है, वहाँ पे ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी निकल के फ़ज़ा में शामिल होती है। नंबर 2, नेचुरल गैस एमिशन। नेचुरल गैस का मतलब है कुदरती गैस, जिसे आप सुई गैस भी कह सकते हैं। सुई तो इसलिए कहते हैं कि सुई बलूचिस्तान में एक जगह है, वहाँ से वो निकल रही है, नाम तो अपना उसका नेचुरल गैस है। एमिशन कहते हैं उसका निकलना। तो नेचुरल गैस एमिशन जहाँ पे भी हो रही है, नेचुरल गैस एमिशन, और वो फ़ज़ा में अगर वो शामिल हो रही है तो वो भी जो है वो पॉल्यूशन का जो है वो काम करेगी। सपोज़ गैस लीकेज है कहीं पे तो तब भी, और कहीं पे भी कोई पानी है, स्टैगनेंट वाटर है, खड़ा पानी, तो उसके अंदर कोई घास वगैरह है तो उसकी जो जड़ें हैं वो डिके करेंगी, और उनकी जड़ों के डिके करने से भी नेचुरल गैस जो बनती है, लाइक मीथेन, उसे मार्श गैस भी कहते हैं, बिकॉज कि मार्शी प्लेस जो है वहाँ से निकल रही है, दलदल वाली जगह से, और वो जो पानी के अंदर घास होगा उसकी जड़ जो है वो डिके करेगी, तो उससे वो बनेगी, और वो अंदर ही पानी के ये निकल के बबल की शक्ल में पानी के अंदर ही ऊपर की तरफ ये बबल ट्रैवल करेंगे और पानी की सरफेस पे आके ये फट जाते हैं और हवा में शामिल हो जाते हैं। तो ये भी एक वजह बनेंगे जी हमारे पास पॉल्यूशन की। नंबर 3, ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन गैस। अब मीथेन गैस जो है ज़ाहिर है ये भी नेचुरल गैस है, मीथेन इसको मार्च गैस भी कहते हैं। तो मीथेन इसका नाम जो है ये आईपेक्स सिस्टम की वजह से है, और मार्च गैस कहते हैं जो इसका नाम है, और ट्रिवियल नेम है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सोर्स के निकलती दलदल वाली जगह से, मार्शी प्लेस से, देयर फॉर इट इज़ कॉल्ड एज मार्च गैस। अब इसकी जब ऑक्सीडेशन करेंगे, और ऑक्सीडेशन भी एयर में हो रही है, और एयर जो है वो उसमें ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ से भी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बनेंगे। नंबर 4, फॉरेस्ट फायर। स्टूडेंट्स आपने अक्सर देखा होगा या पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा कि जंगलात जो हैं दुनिया में उसमें आग लगी होती है। ये कभी उसमें न्यूज़ में भी आता है और टेलीविज़न पे भी देख सकते हैं कि ये बताते हैं जी जंगलात में आग लगी हुई है। अब जिस जगह पे आग लगी हुई है तो पर्टिकुलरली वो जो स्फेयर है, वो एरिया है फ़ज़ा का, तो वहाँ पे डेफिनेटली हवा तो गर्म होके भागेगी क्योंकि आग लगी हुई है, तो ऑक्सीजन वहाँ पे कम पड़ जाएगी। तो जो चीज़ें जा रही हैं वो फॉरेस्ट है, वो ऑर्गेनिक मटेरियल है, कार्बन का बना हुआ, तो कम ऑक्सीजन होगी ऊपर, ज़ाहिर एयर तो भाग के जा रही है गर्म होकर, कम ऑक्सीजन लेके ज़्यादातर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसी के बनने के चांस फ़ज़ा में होंगे। तो जंगल में आग लगी होगी तो वहाँ पे ऊपर टॉप पे फ्लेम के ऊपर जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन के फ़ज़ा में शामिल हो रही होगी, और जब तक ये जंगलात में आग लगी रहेगी तब तक ये गैस जो है उसकी एमिशन होती रहती है, ये बनती रहती है और फ़ज़ा में शामिल होती रहती है, और ये भी एक सोर्स है जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है फ़ज़ा में भेज रहा है। हालांकि आग जंगल में ज़ाहिर है कुदरती लगती है, नेचुरल है, लेकिन ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है कि जिससे इसकी एमिशन होती है, ये भी निकल के फ़ज़ा में शामिल होती रहती है। नंबर 5 है वुड बर्निंग। और वुड बर्निंग जो है, लकड़ियाँ जब जलती हैं तो ज़ाहिर है ये तो फिर मैन बोर्न सोर्स हो गया कि इंसान जो है वो वुड बर्निंग कर रहा है, लकड़ियाँ जला रहा है अपने ख़ास मकसद के लिए, और वहाँ पे भी कार्बन डाई भी बनती है और कार्बन मोनो भी बन रही होती है, और ये कार्बन मोनो वहाँ पे बन के और फ़ज़ा में शामिल हो रही होती है जिस वक्त ये बर्निंग का अमल हो रहा होता है। स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पॉइजनिंग इफ़ेक्ट ऑफ CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये पॉइजनड है, हैज़र्डस है, हेल्थ के लिए मुज़र सेहत है, सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, इवन लाइफ के लिए ख़तरनाक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हाउ इट इज़ हैज़र्डस टू हेल्थ, सेहत को ख़तरा इससे कैसे होता है। व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ इनहेल्ड इट बाइंड द ब्लड हेमोग्लोबिन 320 times more strongly than oxygen। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि कार्बन मोनोऑक्साइड अगर
हम इनहेल करें। इनहेल का मतलब ये हमारे सांस में जाए, यानी हम कार्बन मोनोऑक्साइड के माहौल में, एटमॉस्फेयर में हो तो ये हमारे सांस में जाएगी। हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है तो उससे होती है, ये हमारे लंग्स में जाएगी, फेफड़ों में, और वहाँ पे जाके ये ऑक्सीजन को हटाएगी हेमोग्लोबिन से, उसको रिप्लेस करेगी और ऑक्सीजन को हटा के कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ अपना एक बॉन्ड बनाएगी जो कि 320 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रांगर होगा ऑक्सीजन से। इसका मतलब ये है कि हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को इसने छीन लेना है और उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड ने अपना बॉन्ड बनाना है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है जब हेमोग्लोबिन जो है ये इससे ऑक्सीजन हट जाएगी तो ये ऑक्सीजन कैरियर तो ना रहा, फिर ऑक्सीजन बॉडी में लेके नहीं जाएगा, तो डेफिनेटली इट काज डेथ, से जो है वो डेथ या मौत वाक़या होगी। अब रिएक्शन को अगर आप देखें तो रिएक्शन से आपको पता चलेगा कि ये कैसे हेमोग्लोबिन से रिएक्ट करती है और किस तरह अपना बॉन्ड बनाती है और ऑक्सीजन को रिप्लेस कैसे करती है। स्टूडेंट, आपको रिएक्शन जो है वो नज़र आ रहा होगा, HbO2। Hb स्टैंड्स फॉर होमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन ने हेमोग्लोबिन के साथ अपना बॉन्ड जो है वो बनाया होता है बॉडी के अंदर। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि लंग्स में जाएगी इनहेल्ड, जो सांस सामने ली है उसकी शक्ल में, तो ये ऑक्सीजन को रिप्लेस कर रही है, नज़र आ रहा होगा आपको, और ये ऑक्सीजन को हटा के अपना बॉन्ड हेमोग्लोबिन से बना रही है। यानी HbO2 गेट कन्वर्टेड इनटू HbCO या COHb, यानी हेमोग्लोबिन जो है उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड आ चुकी है। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है कि इसका जो बॉन्ड होगा ऑक्सीजन के मुकाबले में 320 टाइम्स स्ट्रांगर होगा, मजबूती से उसके साथ ये जो है वो जोड़ जाएगी और ऑक्सीजन को वहाँ से ये हटा देगी। तो इसको हम कहेंगे कि ये ऑक्सीडाइज्ड हेमोग्लोबिन तो ना रहा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन तो ना रहा जो कि बॉडी को चाहिए, ये तो एक कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो गया, जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप आके लग गए, कार्बन मोनोऑक्साइड वाला ग्रुप आके लग गए। तो डेफिनेटली इंसान जो है उसके बॉडी में सेल, हर सेल को छोटे छोटे सेल होते हैं बॉडी में, विच आर द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन बीइंग लाइफ, और वो उसको अगर ऑक्सीजन ना मिली डेफिनेटली तो वो अपना फंक्शन जो है वो छोड़ देंगे। तो ये एक रिएक्शन जो है बता रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो किस तरह रिप्लेस हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड से हटा के खुद हेमोग्लोबिन के साथ कैसे अपना बॉन्ड बना रही है। अब हम बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन ह्यूमन बॉडी। स्पेशली कार्बन मोनोऑक्साइड ह्यूमन बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट देती है। तो ऐसे है कि व्हेन बॉडी इज़ एक्सपोज टू 100 ppm concentration of carbon monoxide, it may results headache, fatigue, shortness of breath। यानी इसका मतलब ये है कि जब इंसान जो है अगर वो कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करे, यानी सांस में ले ले, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन हो, यानी फ़ज़ा में वो कितनी इस वक्त मौजूद हो, वो जी 100 ppm। 100 ppm का मतलब है 100 पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन 10 लाख को कहते हैं। तो 10 लाख अगर एयर के मालिक्यूल हैं, 10 लाख एयर के मालिक्यूल, उसमें अगर 100 मालिक्यूल जो हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के शामिल हो गए तो फिर हम कहेंगे कि ये एयर जो है मिक्सचर है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड इसके अंदर मौजूद है, और ये मिक्सचर जो है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सोल्यूट होगी और एयर जो है वो सॉल्वेंट का काम करेगी। तो ये एक मिक्सचर बनेगा फ़ज़ा में, और जिसमें 100 पार्ट्स जो हैं वो 10 लाख जो एयर के मालिक्यूल हैं, 10 लाख एयर मालिक्यूल, उनमें 100 मालिक्यूल जो हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के होंगे। तो ज़ाहिर है ये टोटल जो एयर के मालिक्यूल हैं उनके मुकाबले में तो ये जिसकी जो मकदार है बहुत कम है, लेकिन फिर भी इसकी वजह से जो नुकसान होंगे वो ये होंगे कि वो शख्स जो इस फ़ज़ा में मौजूद होगा जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड 100 ppm मौजूद है तो वो सफ़र करेगा। नंबर 1 हेडेक, यानी उसके सर को दर्द होगा, उस हेड पेन की वो बात करेगा कि सर को दर्द। नंबर 2 फटीक। फटीक का मतलब ये है कि ये थकावट महसूस करेगा, यानी ऐसे उसे लगेगा कि जैसे वो थका हुआ है, जिसमें आप कह लें कि जी कायली आ जाती है, सुस्ती आ जाती है, लेज़ी जिसे कहते हैं, तो थकावट वो महसूस करेगा। नंबर 3 शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा। स्टूडेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का मतलब ये है कि सांस लेने में उसे दुश्वारी होगी, कंप्लीट सांस नहीं ले सकेगा। जैसे चेस्ट जो है वो फैला के सांस लिया जाता है
तो वो पूरी तरह से सांस यानी उसकी चेस्ट पूरी तरीके से एक्सपेंड नहीं करेगी, तो शॉर्टनेस हो जाएगी। जब वो प्रॉपरली सांस ही नहीं ले पाएगा तो इट फील वेरी अनईजी फॉर ह्यूमन बीइंग कि वो अभी पूरी तरह सांस भी नहीं ले रहा, तो उसके लिए ये मसला बन जाएगा। अब अगर कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा हो जाए तो हम बात करेंगे कि अगर 100 ppm से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड की फ़ज़ा में जो है मकदार हो गई है, से इट इज़ हायर दैन 750 mm, यानी कोई 7.5 गुना ज़्यादा हो गई है, 100 की बजाय 750 ppm हो गई है, यानी 10 लाख एयर के मालिक्यूल हैं और उसमें कोई 750 जो हैं वो कार्बन मोनो के आ गए हैं, तो ज़ाहिर है ये इसकी मकदार तो अब पहले से ज़्यादा हो गई है। तो पहले भी ये इतना ज़्यादा जो है वो कर रही थी, प्रॉब्लम दे रही थी, तो अब तो पहले से भी ज़्यादा इसने प्रॉब्लम देने हैं। और नंबर 4 की बात अब हम करेंगे, कहते हैं लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगी। पहले ये था ना कि सर को दर्द होगा, थकावट होगी, सांस लेने में दुश्वारी होगी। अब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी जो शख्स है या जो भी इसकी ज़ात में है वो बेहोश हो जाएगा, कॉन्शियसनेस नहीं, अ पर्सन बिकम अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाएगा। और फिर अल्टीमेटली नंबर 5 आता है डेथ ऑकर्स क्विकली, और ज़ाहिर है एकदम जो है वो उसने ये मौत की तरफ धकेल देती है इंसान को। तो ये इसका एक तरीका है स्टूडेंट्स कि ये किस तरीके से जो है वो इफ़ेक्ट करती है इंसान के ऊपर और ह्यूमन बीइंग को किस तरीके से ये डैमेज करती है। और ये एडेक्ट से शुरू होती है, इसका पहली जो इलामत है, एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू द डेथ, तो ये फिर मौत का बायस बनती है।